Welcome to Madhur's World and I am Madhuram. Like promised last week, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अब कंटिन्यूसली वीडियो बनाऊंगी हर वीकेंड. So as promised, I am here with my video today. So आज का जो आसन है बेसिकली एक आसन नहीं होगा जो मैं आप लोगों को बताऊंगी. मैंने बहुत सारे कंप्लेन सुने लोगों के या बहुत सारे ऐसे कंसर्न सुने लोगों के जिसमें लोगों ने ये बोला है कि मैं योगा तो कर लूंगा लेकिन मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही है, स्पेशली उन आसनास के लिए जिसके लिए हमें हिप फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है. तो आज मैं कुछ वैसे आसनास बताऊंगी जो आपको करनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर योगा. और इवन ऐसा नहीं है कि एज अ वार्म अप, बट आप एज अ स्ट्रेच भी इसको यूज कर सकते हो और अपने हिप्स को फ्लेक्सिबल बनाते हो सो दैट आप और भी स्ट्रेचेस और भी योगा आसनास और इजीली कर सकते हो. अदर वे राउंड कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ योगा आसनास करोगे उसके लिए वार्म अप है या काइंड ऑफ स्ट्रेच है, बट ऑल्सो व्हेन यू आर कंटिन्यूसली सिटिंग ऑन चेयर फॉर योर ऑफिस वर्क, योर hip won't basically get frozen, okay? So we have to make it flexible now. So उसको flexible करने के लिए let's get started. There are few asanas that I'll be telling you. And before starting off, I'll again tell you, like my videos if you like it and share it with your friends if you feel it's helpful for them. And subscribe to my channel. Okay, so let's get started. We'll start with first one. Okay, so for that, what you have to do, come in downward dog position. Okay, raise your right leg and breathe in. Once you exhale, fold your leg. Okay, come in this position. So in this, what is happening? This is in your 90-degree angle. Okay, and then जो आपका पीछे वाला पैर है, that should also be in line with your hip. Okay, and basically इसमें क्या हो रहा है ना कि मैं पैर पे नहीं बैठी हूँ, मैं अपने हिप्स पे बैठी हूँ. So आपको ऐसे ही बैठना है. Breathe in. As you breathe out, you can relax. You can relax. Put your head on your forearm. Keep breathing. Okay. Similar thing we'll be doing with our left leg. Again, come in downward dog position. This time, lift your left leg. Breathe in. As you breathe out, your left leg should be in 90-degree angle. If you want, I'll be showing you for left leg to the other side. Okay? So come in downward dog position. Lift your left leg up. Breathe out. Put your left leg here. Okay. So you can see I'm again sitting on my hip bones. You have to feel that stretch on your back leg also and the one that is in front. So you'll be feeling that stretch in your hamstring here. Now relax. Now we'll go for the second pose. This was your first one. For the second one, go in downward dog position. Raise your right leg. Put your right leg in front, beside your hands, which is this side, and come in this pose. Try to adjust your legs. Okay? जब आप करते हो ना तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप इस पोजीशन में होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो ट्राई करो कि आप इस पोजीशन में होल्ड करो. पीछे का पैर जमीन में टच नहीं होना चाहिए. अगर आपको रिलैक्स फील हो रहा तो फिर आप टच कर सकते हो. You can stretch. Then अपने राइट हैंड से राइट लेग को पुश करना है. So I am basically pushing it like this. Okay, so that मेरे यहाँ के बोन्स पे फ्लेक्सिबिलिटी है. ठीक है, ये फ्री होगा जो अभी आपका ब्लॉक हो चुका है.
Okay. Now I'll be showing you from the left side. I'm in downward dog position. Lift your left leg. Put it in front. Hold this position. Come on your elbows. Hold it here. Keep breathing. Engage your core. Now, I am pushing my left leg. You can see that? I'll be pushing my left leg now. Okay, so these are second. Okay, I'll be coming to third now. मैं already sweating हो रही है. Okay, सबसे important चीज है आप जितना ज्यादा होल्ड करते हो पोजेस को. ठीक है, मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है कि अगर आप ज्यादा होल्ड करते हो धीरे धीरे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है और आपका कोई भी बॉडी पार्ट जो भी आप आसना कर रहे हो वो सारा फ्लेक्सिबल होता है. अगर आप स्टैग्नेंट जस्ट 10 सेकेंड्स ही कंटिन्यू रखोगे तो इट इज गोइंग टू हेल्प आउट बट नॉट मच, बिकॉज हमें हमेशा अपनी लाइफ में और हमेशा प्रमोशन चाहिए, राइट. सो आप धीरे धीरे खुद की बॉडी को प्रमोट करो. प्रमोट इन द सेंस हायर साइड जाओ, नॉट लोअर साइड. अगर आप 20 सेकेंड्स कर रहे हो, ट्राई टू डू इट फॉर 30 सेकेंड्स, देन टू 50 सेकेंड्स, देन गो फॉर 1 मिनट. सो इट्स लाइक खुद के लिए मोटिवेशन होता है. ठीक है, सो 2 आसना हो गए. नाउ आई बी गोइंग फॉर द थर्ड वन. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट सिट. योर spine should be straight. Okay, and try कि आपके जो दोनों पैर हैं वो जमीन पे होने चाहिए. It's like this. Okay, ये ऐसे नहीं होना चाहिए. अगर आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने पैर को क्लोज लाओ बॉडी के एंड देन ट्राई टू पुश इट लाइक दिस. इफ यू कैनॉट होल्ड लाइक दिस, लाइक बेसिकली जब मैं कर रही हूँ तो मैंने पैर पकड़ा हुआ है और उसको जमीन पर टच किया हुआ है. ठीक है, दोनों पैर मेरे, दोनों नीज मेरे बेसिकली जमीन पर हैं. ठीक है, बट अगर आपके लिए प्रॉब्लम है सो आप थोड़ा दूर करो. ठीक है, अगर यहाँ पे भी है तो ट्राई टू पुश इट like this and be here. ये आप 1 से 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, आपको खुद से फील होगा कि आपकी बॉडी इज अलाउइंग यू कि आप इस पैर को थोड़ा पास लाओ एंड देन आप ये वाला आसन करो. ठीक है, तभी लाइक आई कैन डू इट. सो मैं क्या करूंगी, मैं अपने दोनों पैर को थोड़ा पास लेके आऊंगी. ओके, आई विल ट्राई टू मेक माई नीज डाउन. दोनों जमीन पे हैं. वेरी फाइन. होल्ड इट हियर. Breathe in. As you breathe out, try to go down. Hold it here. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Okay? तो मैंने भी 10 सेकेंड्स के लिए किया है. अगेन आप इसको थोड़े ज्यादा टाइम के लिए कर सकते हो इफ यू कैन डू इट एंड होल्ड इट फॉर लॉन्गर. सिंस मुझे बहुत सारे आसन बताने हैं, मैं पोजेस को होल्ड भी कर रही हूँ ज्यादा टाइम के लिए. ओके, सिंस मैंने ये आसन कर लिया है, सो ट्राई टू हैव अ कुशन. इफ यू फील लाइक, जो दूसरा आसन मैं बताने जा रही हूँ, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप एक कुशन रख सकते हो. उस कुशन के ऊपर आपको बैठना है. ओके, then spread your legs. ये आसना एक्चुअली लेडीज के लिए बहुत अच्छा होता है. इवन फॉर गाइज, इट्स नॉट दैट कि सिर्फ लड़कियों के लिए मैं बता रही हूँ. लड़कियों के लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इवन आप अपने पीरियड्स में हो या अगर आप पीरियड्स में नहीं भी हो तो आपकी जो पीरियड्स है, अगर नॉर्मली हम आजकल बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज देख रहे हैं जिसमें लेडीज आर सफरिंग फ्रॉम PCOS and PCOD. So those are why this is happening. It's because of your irregular cycle of your period. So अगर आप ये आसना डेली करते हो तो आपको खुद से डिफरेंस लगेगा अपने बॉडी के अंदर.
your periods will be normal. Okay, now spread your legs, breathe in, as you breathe out try to come forward. Okay, अगर आप पूरा forward नहीं जा पा रहे हो, hold it here on your elbows. Okay, keep breathing. So basically it is also stretching your hip bones, hamstring. Okay, now relax, hold your legs and be here for a while. क्योंकि जो भी स्ट्रेच आपके पैर पे अभी हुआ वो आसन करने के बाद you will feel comfortable holding your legs. Okay, I put my cushion back. So ये आसना था आपका. इसके बाद नेक्स्ट आसना जो हम करेंगे that is lying down. So in this, ये आपने बहुत बार देखा होगा, स्पेशली किसको करते हुए, सबसे रिलैक्स इंसान को. कौन है वो? बच्चे. ठीक है, तो आपको क्या करना है, just lie down your back, hold your toe using your hands, try to push your knees to the ground. दोनों साइड से दोनों पैर को नीचे पुश करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, जितना नीचे पुश करेंगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हिप बोन्स की उतनी ज्यादा होगी. तो आप इसको नीचे पुश करने की कोशिश करो. ठीक है, नेक्स्ट आसना, सिंस आई एम ऑलरेडी लाइंग डाउन, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. अपने राइट लेग को लेफ्ट नीज के ऊपर रखिए. ठीक है, then hold your left leg from below your thigh muscles. Okay, from here, और इसको पुश कीजिए अपने and pull it towards your body. Okay, ऐसे. इससे क्या होगा, you will feel that stretch on your right hamstring and your right hip bones. And keep breathing normal. Similarly, we'll be doing for the left leg. ये वाला हो गया. Now we'll move to other asana. Since you are already lying down, तो आप सेम पोजीशन में आ जाओ. Okay, अभी हम will try कि आपका राइट लेग जो पहले हमने स्ट्रेट रखा था वो अभी हमें फोल्ड करना है. ठीक है, लाइक दिस. ट्राई टू पुश फ्रॉम योर पेल्विक. या फिर आप दोनों ही पैर स्ट्रेट रखो. Now lie down like this and take your right or left leg here. Feel that stretch. Similarly, for the right one, मैं आपको जैसे दिखाती हूँ, जिसमें lie down for your right leg, try to bring it here till your waist. If you can bring till here, you can bring it till here also. Feel that stretch. Okay. Now, the last pose. Again, lie on your back. जैसे हम बैठ के कर रहे थे, सिमिलरली अभी हमें लेट के करना है. तो टच बोथ ऑफ योर फुट हियर एंड पुश योर नीज
to touch the ground. Core engaged, breathing normal. Try to push your knees to the ground. Be in this position as long as you can. It's very relaxing. Also working on your hip bones. Okay, now hug your legs. So this is the way I'm just relaxing my hamstring muscles, my knees, my hip bones, because we have stretched them a lot right now. So relax it. Okay, so ये कुछ आसनास थे जिससे आपकी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी होगी और आप बहुत सारा आसना, बहुत सारे पोजेस कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी प्रेशर. ओके, कितने बार ऐसा होता है कि आप वो आसना नहीं कर पाते हो, डायरेक्टली आप वो आसना करना चाहते हो. तो बिफोर गोइंग फॉर दोज आसनास, दिस इज अ प्रिपरेशन which you should make it, and you should make your muscles flexible, relaxed, and then go for that pose. So in one go you're able to do it. So that is it from my end, and just like my video, share it with your friends as you feel like it's helpful for them, and subscribe to my channel, and I'll keep sending some videos. I'll keep uploading more videos related to workouts, yoga, and many more.